Okay, so again before I start, let me just revise this with all formulas again. Okay, so this chart is not specially for even and odd function. You can treat in general also. Okay, so yeah, just 1 minute. So Fourier series. Okay, so in general, the Fourier series representation of any given function f of x is given by this formula: a naught by 2 plus summation n runs from 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. यहाँ पे in this case particularly, how you calculate L? Can anyone just tell me the formula for b minus a divided by 2? Yeah, so or b minus a divided by 2. Okay, or length of the interval divided by 2. That is the value of L. If I consider a function f of x, which is a periodic function defined on the interval a comma b. Okay, next part is what? So this whole process, the calculation of this Fourier series is divided in two parts. One, you can say a general interval. This is a general interval. Okay, this is for all function. And you have some simplification if I consider the interval of the form minus L to L. Okay, so you can differentiate now these all examples in these two parts. One is any general interval, या इसके लिए आप बोलो कि इसके लिए कोई condition है ही नहीं. If you have given the interval in the form of minus L to L, then in that case some simplification is possible, and those simplification is depend on either it is even function or either it is odd function. With reason, I have explained that whole part in that last lecture. Okay, so if it is the general interval, okay, then your a naught is this integration of f of x dx 1 by L c to c plus 2L. an is this 1 by L c to c plus 2L f of x into cos n pi x by L. an के जगह पे f of x रख दो. And bn is this, just replace bn by f of x. So this is the general formula. This part is applicable for all given examples. इसके लिए कोई specific condition नहीं है. But what happen if we have given interval of this type minus L to L, then there is some simplification is possible that we can actually do by using the even function and odd function. So here in this interval, it is very important that you have to first identify that whether that given function is even function or whether it is odd function, क्योंकि इसके ऊपर ही आगे पूरा कैलकुलेशन आपका डिपेंड है. अगर आपको अगर ये ही प्रॉपर नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है which is my even function, which is my odd function, then it is not possible you to find or to identify that simplification, okay, from this interval. नहीं तो आपको फिर सॉल्व करना होगा, आपको a नॉट कैलकुलेट करना होगा, an कैलकुलेट करना होगा, bn कैलकुलेट करना होगा. बट MCQ पॉइंट ऑफ के लिए आपको मैंने पहले ही बोला है. ओके, एज फार एज MCQs आर कंसर्न, ओके, ये थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है माइनस L to L इंटरवल, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अभी कितने स्टूडेंट को कल के लेक्चर का याद आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर अ फंक्शन लाइक दिस x square plus 4, okay, it is a periodic function, it satisfies declared condition defined on the interval, say minus. Sir, so students are waiting. Yes. Students are waiting because they are late, na. Just 1 minute. Okay, so if f of x is, okay, क्या बोल रहा, हाँ, f of x equal to x square plus 4. आई थिंक अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है. ठीक है, ओके. So if f of x equal to x square plus 4 and if I define this function on the interval से random भी ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, like say minus 2 to 2, correct? So can you tell me what is value of bn in this case? What is my bn? Fourier coefficient bn 0. ठीक है, या आपको ऑनलाइन में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले फॉर 1 मार्क और फॉर 2 मार्क्स. ओके, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या देखा था पहले कि इंटरवल क्या गिवन है, माइनस L to L के फॉर्म में इंटरवल गिवन है. ओके, नेक्स्ट आपने क्या देखा कि अगर माइनस L to L के फॉर्म में इंटरवल आपके पास है तो आपको वहाँ पे क्या चेक करना है कि वेदर दैट गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और वेदर इट इज ऑड फंक्शन. ओके, सो वी नीड टू चेक दैट. तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता है x स्क्वायर प्लस 4 आपका इवन फंक्शन है. सो इफ इट इज इवन फंक्शन bn डायरेक्टली 0 होता है. सो दिस आर द फॉर्मूलाज अंडर दिस इवन फंक्शन. ठीक है, सो आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन एंड अगेन. सो a नॉट इज 2 by L 0 to L. ये चेंज आपको याद रखना है. आज के लेक्चर में वैसे एग्जांपल में लेने वाला इस पॉइंट इस टॉपिक के ऊपर, बट ये चेंज आपको याद रखना है. ओके, सो इन केस ऑफ इवन फंक्शन आपकी इंटरवल डायरेक्टली हाफ हो जाती है.
In case of even function, now you have to calculate this integral only for a half interval, 0 to 2 पे ही calculate करना है, ठीक है, not necessary to consider from -2 to 2 again. That is for a general formula. वहाँ पे -2 to 2 interval आपकी आ जाएगी, but if it is even function, then you have to just consider the interval from 0 to 2. लोअर लिमिट इवन एंड ऑड फंक्शन के सारे फॉर्मूलेज में योर लोअर लिमिट इज ऑलवेज 0, ठीक है, एंड रिमेनिंग थिंग्स आर एज इट इज 2/l 0 to l इतना ही चेंज होता है. एंड यहाँ पे ऑड फंक्शन में a0 0 होता है, an 0 होता है एंड bn इज दिस, करेक्ट. एंड इन केस ऑफ इवन फंक्शन योर bn इज 0 एंड रिमेनिंग वैल्यूज यू नीड टू कैलकुलेट. ओके, चलो, इज दिस क्लियर? या अभी इस चार्ट में कुछ डाउट्स है? क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, मतलब मेरा पहले वही बोला है कि इसके बाद बस हमें प्रैक्टिस ही करनी है. ओके, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके, विल कंटिन्यू टू द एग्जांपल्स, ठीक है. या सो एक एग्जांपल हमने कंप्लीट किया था, जस्ट लेट मी शो यू दैट. तो फर्स्ट एग्जांपल क्या था? यू कैन रेफर दिस PDF डायरेक्टली, एंड PPT के क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ले सकते हो, बिकॉज दिस आर द लेंथी क्वेश्चंस. इस पे क्वेश्चन MCQs में भी थोड़ा क्रिएट करना डिफिकल्ट होगा, सो आई विल फोकस मोर ऑन दी सिंपल एग्जांपल्स. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास फंक्शन क्या है, f(x) = x. Okay, this is your function and it is a periodic function defined on the interval 0 to 2 pi. Now you can see here this interval is not of the type -l to l. Okay, it means you cannot apply that even function and odd function part. आपको इन जनरल इंटरवल से कंपेयर करके इसको सॉल्व करना होगा. तो हमने यहाँ पे a0 कैलकुलेट किया, हमने an कैलकुलेट किया, हमने bn कैलकुलेट किया, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट अवर लास्ट लेक्चर. एंड नाउ सेकंड question is, let me take a similar question. Okay, find the Fourier series of f(x) = x square defined on the interval 0 to 4. f(x + 4) = f(x). It means that given function is the periodic function, okay, with period 4 defined for all x. Okay, yeah. So in solution, okay, we just need to consider. In solution we just need to consider the function which is x square and the interval. इतनी information आपको चाहिए, 0 to 4. Okay, so can anyone tell me what is my L? What is my L? 2. That is 4 minus 0/2. That will be 2. ठीक है, L की वैल्यू अभी आपको समझ में आ गई है. हाँ, now since this interval is not of the type -l to l, तो इसमें even and odd का पार्ट आने ही नहीं वाला. So without wasting time directly आपको a0 कैलकुलेट करना है, ठीक है. ये अप्रोच आप देखो, अभी यही क्वेश्चन में अगर बस इंटरवल चेंज करता हूँ ना, ओके, यू कैन सॉल्व दिस बाय अ डिफरेंट अप्रोच. मैं लेने वाला हूँ वैसे टाइप के क्वेश्चन लेने वाला हूँ. सो हियर a0 इज व्हाट? कैन यू टेल मी दैट जनरल फॉर्मूला, एनीवन? 1/l. 1/l integration 0 to 4. हाँ, c to c. ओके, लेट मी राइट फर्स्ट इन जनरल, c to c + 2l f(x) dx. हाँ, अभी आप बोलो डायरेक्टली 1/2 देन 0 to 2 and this is x square dx. Okay, so just complete this integral. So this 0 to 4l. Sorry. 4l. This interval is from 0 to 4. Okay, now and now just complete this integral. So this become the integration of x square become x³ / 3. Okay, and calculate for 0 to 4. Okay, just tell me this final value, and this become then 4³ upon 3 minus 0. Calculate this and just tell me the final value. I will go for a next value. Okay, so and next is an. What is the formula for an? What is the formula for an? Yes, an का formula क्या है? It is very similar to this. 1/l. हाँ, इसका आंसर क्या रहा? किया आपने कैलकुलेट? 32 बच गया. Do it on calculator directly. आप चेक करो. 32/3. Okay, correct. So an is what? 1/l. Very good. c2 c + 2l. Okay, f(x) यहाँ तक तो सेम ही है. इसके आगे एक और टर्म ऐड होता है. हाँ, so an is related with cos function, bn is related with the sin function. इसका रोल है आगे हार्मोनिक फंक्शन. दिस इज द लास्ट पार्ट इन दिस यूनिट, तो उसमें आपको इसका रोल समझ में आएगा. so cos n πx upon l dx. so if I just so let me write in the next line, this is better. So that become 1/2, 0 to 4. My function is x square
नाउ दिस बिकम cos n pi x by क्या आने वाला है 2, ओके, दिस इज योर dx. सो अब इसमें थोड़ा आपको वर्कआउट करना होगा. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. नाउ टेल मी फर्स्ट टर्म, जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स. टेल मी फर्स्ट टर्म. x square into x sin को वैसे रखना है. 1/2. सेकंड का इंटीग्रेशन sin n pi x upon 2 divided by what? n pi by 2. Very good, n pi by 2. ठीक है. माइनस, नाउ टेक अ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज 2x, है ना. इंटीग्रेशन ऑफ दिस विच इज माइनस cos n pi x by 2 and what is in the denominator? It becomes square now, है ना. n square pi square by 4. ठीक है. Now give the plus sign, this become 2 multiply by, now this become minus sin n pi x by 2 and whole divided by, this become n cube pi cube by what 8. ठीक है. आप कैलकुलेशन चेक करो अगर कहीं पे आपको मिस्टेक लग गई तो. नाउ दिस you have to calculate for 0 to 4 limit, okay, and now just put upper limit and lower limit. I will do it only for a an, okay. ऐसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, बट जस्ट टू रिपीट दिस कंसेप्ट ये मैं ले रहा हूँ. या 1/2 एज इट इज, ओके. इफ आई पुट हियर n इज इक्वल टू, सॉरी क्या पुट करना है, x, हाँ x इज इक्वल टू 4 पुट करना है. तो क्या आने वाला है यहाँ पे, इफ आई पुट x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 2n पाई आने वाला है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2n पाई? 0. ये अदर स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आपको पुट कर, मतलब ये ऐसे ही कैलकुलेट करना है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग दोज स्टेप्स अगेन एंड अगेन. ठीक है. सो इफ आई पुट x इक्वल टू 4 हियर, इट बिकम 2n पाई एंड sin 2n पाई. एक रिजल्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था. आई विल रिपीट दैट रिजल्ट अगेन एंड अगेन. sin n पाई इज ऑलवेज 0 फॉर एनी n. फॉर एनी n मतलब नेचुरल नंबर और इंटीजर, एंड cos n pi is the -1 raised to n. Okay, so just remember this result where n you can consider from a natural number. Okay, and now yeah, so this first value is 0. Okay, what about this second? What about this second? ये क्या आने वाला है? This is 2 into 4 become 8 multiply by हाँ minus cos, okay, n x is 4, so it is 2n pi divided by n square pi square by 4, करेक्ट. एंड ये भी फिर से 0 का, साइन के फंक्शन सारे 0 आ जाएंगे. आई थिंक दिस इज योर अपर लिमिट. कैलकुलेट फॉर अ लोअर लिमिट. यस, एनीवन? व्हाट अबाउट लोअर लिमिट? बिकॉज ऑफ x दिस टर्म इज 0, बिकॉज ऑफ x दिस टर्म इज 0, बिकॉज ऑफ sin दिस टर्म इज 0, so there is 0 in the denominator. Now just try to simplify this and that will be your final answer. Okay, so this 2 become 4 and ये क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा, and ये 4 ऊपर आएगा. तो what we have to write here? 16 upon this n square हाँ n square pi square. What is value of cos 2n pi? -1/n. हाँ, so ये करेक्ट. ये फॉर्मूला अगर आप कंपेयर करते हो, 2n pi क्या आने वाला है, -1 raised to what? -1 raised to what? cos n pi में -1 raised to pi का कोएफिशिएंट है वो ऊपर आता है ना, pi का कोएफिशिएंट ऊपर आता है. इसमें क्या आने वाला है? हाँ, -1/2n. 2n. and what is value of -1 raised to 2n? 2n मतलब इवन नंबर है. -1 की इवन पावर क्या आती है हमेशा? हाँ, पॉजिटिव मतलब 1. ठीक है. सो इज इट ओके इफ आई राइट हियर 1 डायरेक्टली? Yes. Those who don't know, just remember cos 2n pi. मतलब आप इतना याद रखो, cos में पाई को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 1 आता है, पाई को अगर आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो -1 आता है. दैट इज द सिंपलेस्ट रिजल्ट. ठीक है. सो दिस वैल्यू इज 1 एंड आई थिंक इतना ही है. ठीक है. सो 16 n square pi 16 upon n square plus pi square. This is your final answer. And now similarly you can calculate the bn. Now this is the homework for you. ठीक है. 1/L c to c plus 2l f of x sin n pi x by l dx. That answer is very much similar to this. जो कैलकुलेशन आप करने वाले हो नेक्स्ट केस में भी इससे ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है. एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, जस्ट 1 minute, yeah,
दिस इज इक्वल टू 1/2 0 to 4 x square sin n pi x by 2 dx. Okay, so can you complete this? मतलब बाद में, अभी नहीं. Okay, but is it possible you to solve this part? Can I skip this? Yes, sir. Okay, because it is just a repetition of those steps again and again. So this is all about the first interval. तो अभी तक मैंने क्या complete किया है? Okay, ये first interval के सारे example मैंने लिए. So if I have given an interval which is not of this type, if I given an interval which is not of this type, in that case आपको कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्टली उसको सॉल्व करना है. But now onwards we'll take examples where the interval is in this form, -L to L के फॉर्म में अभी आपके पास इंटरवल होगी, एंड फिर आपको डिसाइड करना है कि उसको कैसे सॉल्व करना है. एंड सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स में लेने वाला हूँ, कुछ ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन ऐड नहीं करने वाला, एंड देन विल फोकस ऑन दी दैट हाफ रेंज क्वेश्चन एंड हाफ रेंज साइन. ओके, सो लेट मी ऐड वन मोर क्वेश्चन के बुक का ही ले लेता हूँ मैं. या क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फोरियर सीरीज. अभी मैं डायरेक्टली फंक्शन एंड इंटरवल ले देता हूँ, आपको पता है फॉर्मेट अभी क्या है. ओके, इज इट ओके? क्योंकि क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें रेडीमेड ही रहेगी. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, दिस फंक्शन इज गिवन, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर द इंटरवल माइनस पाई टू पाई. ये गिवन है इंटरवल. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है. सो इन सोल्यूशन आपको मैंने पहले क्या बोला, फ्रॉम अ क्वेश्चन जस्ट राइट डाउन द फंक्शन. सो आवर फंक्शन इज पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड आवर इंटरवल इज माइनस पाई टू पाई. नाउ टेल मी योर अप्रोच कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. ओके, बोलो. यस, इवन फंक्शन क्या करना होगा? इवन. हाँ, ये इवन है. ओके, बट इन दिस केस first of all we need to check before actually start to solving those values like say a0, an and bn. Okay, first check whether this given function is even function or odd function. minus L to L interval के सारे examples में first of all we need to check whether that given function is even function or odd function. So clearly, क्योंकि आपको just by observing this function you can directly check whether it is even or odd. So clearly this f of x which is equal to pi square minus x square is even function. Okay, आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये even function है. ठीक है, so if it is even function, so can you tell me which value is 0? If it is even, which value is 0? even में क्या डायरेक्टली आ जाता है. So no need to calculate. Yes, so no need to calculate this bn, that saves our time. ठीक है, bn आपका डायरेक्टली 0 आने वाला है. सो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन a0 एंड an. ठीक है, तो ये इवन केस के ही फॉर्मूलेज आपको यूज करने. ओके, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फॉर्मूला फॉर a0 इफ माय फंक्शन इज इवन? आप बोलो. एंड l 2/l इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l. वेरी गुड, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l. बाकी चीजें तो सेम है. ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे l चाहिए. सो लेट मी कैलकुलेट l हियर. व्हाट इज माय l? What is my L? Pi. Pi minus of pi by 2, that gives me 2 pi by 2, that gives me pi. Okay, so now this become 2 by pi 0 to pi. Okay, क्या ये pi square minus x square dx. Okay, अभी इसके आगे में कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करने वाला. Okay, सबको कैल्शियम ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करनी पता है, विच हेल्प्स यू इन ऑनलाइन एग्जाम. डेफिनेट इंटीग्रल डायरेक्ट कैल्शियम में सॉल्व हो जाते हैं. तो मतलब अगर ये क्वेश्चन ऑनलाइन में आता है ना, बस देख के कैल्शियम में वैल्यू पुट करने, यू हैव टू राइट डाउन दैट आंसर. अदरवाइज मैन्युअली करने में आपका टाइम वेस्ट होगा. और आपको पता है कि अगर कैल्शियम अलाउड है, ओके, इन एनी योर एग्जाम इन दिस इंजीनियरिंग कोर्स, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप कोई भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, इन ऑल 4 ईयर्स, ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो. ठीक है, सो ओके, सो आपने ये अभी एक स्टूडेंट का तो रिप्लाई आ गया. ओके, अदर स्टूडेंट्स आपको पता है ये कैसे कैलकुलेट करना है कैल्शियम में? नो सर. ओके, सबके पास कैलकुलेटर है? वो बोलो, सबके पास कैलकुलेटर है? ये शायद यस सर. कौन सा है आपके पास अभी?
कौन सा FX 991 सर। EX है क्या? यस Yes, sir. यस सर। FX. ओके अभी मेरे पास जो ऑनलाइन अवेलेबल है मैं दोनों फंक्शन है, जस्ट जस्ट लेट मी गिव यू दैट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ES कैलकुलेटर। शायद आपको हमने FX का ही बोला होगा, शायद मैंने बोला था उस टाइम पे। सर EX है। EX है EX है सर। अभी उसका टेम्पलेट है मेरे पास। just a minute। उसका टेम्पलेट नहीं है, तो उसके फंक्शन थोड़े अलग है, मुझे डाउनलोड करना होगा। सो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस ES, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा, मतलब सिमिलर पैटर्न में ही है, ठीक है? दिस इज द ES, अगर ES फॉर्म में है या सो फ्रॉम दिस ईयर एक्चुअली हमने एडवांस कैलकुलेटर सजेस्ट किया था, तो शायद अब सबके पास EX होगा, एम आई करेक्ट? यस सर। अगर ये भी है ना तो उसमें Yes, sir. इफेक्ट होगा नहीं, ओके? बस प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ES और EX दोनों के फंक्शन अलग अलग है, तो अगर वो फैकल्टी आपको ES से एक्सप्लेन करे तो आपको EX में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो किसी एक वे से हमें जाना था, तो शायद हमने आपको EX ही बोला होगा, ठीक है? बट अभी ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेकंड ईयर स्टूडेंट्स अभी मेरे पास ये ES का ही अवेलेबल है, सो मैं इससे एक्सप्लेन करता हूँ। यू कैन ट्राई इन अ सिमिलर वे, यू कैन ट्राई इन यूर कैलकुलेटर। अगर आपके सामने है तो आप, अगर नहीं है तो आप क्विकली टेक दैट कैलकुलेटर एंड यू ट्राई टू सॉल्व दिस इंटीग्रल ऑन कैलकुलेटर, ठीक है? नहीं तो मुझे वो डाउनलोड करना होगा, दैट विल टेक टाइम, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में वो डाउनलोड करके आपको मैं उससे भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? हाँ, बट ये सिमिलर फंक्शन है तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज यू ऑल आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, तो इतना कुछ मुझे नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम आ जाएगी। या सो लेट मी कम टू दिस प्रॉब्लम अगेन, ठीक है? आपके ES आने दो, EX आने दो, उस कैलकुलेटर में भी एक इंटीग्रेशन का ऐसे बटन होगा। इज दिस विजिबल क्लियरली? यस सर। हाँ, तो ये Yes, sir. इंटीग्रेशन, हाँ, अभी उससे पहले स्क्रीन पे ये जो मोड यहाँ पे आ रहा है, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट, बट फॉर मैथमेटिक्स अभी इस टॉपिक में हमें कैलसी चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन टॉपिक इज आल्सो देयर वेयर वी नीड दिस कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो यहाँ पे स्क्रीन पे योर मोड मस्ट बी रेडियन। मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट, कोई भी कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो ना, तो दैट कैलकुलेशन मस्ट बी इन रेडियन। एक ही ऐसा टॉपिक है जो इसी यूनिट में आने वाला है, हार्मोनिक एनालिसिस, वेयर वी नीड टू चेंज दैट मोड। कुछ कैलकुलेशन हमें डिग्री में करने हैं, ओके? सर ते रेडियन तो करते सांगा ना। अभी मुझे इस कैलकुलेटर में आपको मैं बोलता हूँ, तो ये मोड सेटअप में सारा फंक्शन है। सो शिफ्ट प्रेस करो एंड सेटअप में जाना है, एक्चुअली शिफ्ट प्रेस करके मोड में जा, हियर यू कैन सी दिस ऑल ऑप्शंस। थर्ड पे डिग्री है, फोर्थ पे रेडियन है, सो इफ आई प्रेस 4 दैट कैलकुलेटर इज नाउ रेडियन मोड, ठीक है? एंड इसमें एक और फंक्शन होता है कॉम्प फंक्शन। कॉम्प फंक्शन मतलब आप सारे मोड से बाहर आ जाते हो, ओके? यू आर एट अ बेसिक, यू आर एट इन अ बेसिक मोड, ओके? तो बेसिक मोड में जाने, अभी आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ राइट नाउ दिस कैलकुलेटर इज इन मैट्रिक्स मोड। हैव यू सीन दिस हियर? मैट दिखाई दे रहा है, तो ये मैट्रिक्स मोड में, मैंने मैट्रिक्स के लिए कुछ कैलकुलेशन इसमें किया था। सो आई वांट अ प्लेन मोड, सो आई विल प्रेस मोड बटन अगेन एंड देन प्रेस 1, ओके? ठीक है, ये मैथ अलग है, ये मैथ मध्ये नाही EX मध्ये नाही येते ऑप्शन। अभी उसमें ना, ओके? तर शिफ्ट मेनू करायचं, त्यानंतर अँगल युनिट येते, त्याच्यामध्ये येते मग रॅडियन. कोणतं करायचंय? यू कैन डिस्कस। Shift menu. क्या करता हो, ओके? लेट मी डाउनलोड दैट, ओके? नहीं तो क्या वेस्ट हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, पॉसिबल होता तो मैं आपको बोल देता हूँ। जिन्होंने किया है ना, प्लीज एक्सप्लेन टू अदर स्टूडेंट, तब तक मैं डाउनलोड कर देता हूँ। शिफ्ट आणि मग मोड दाबायचं, मग ऑप्शन येतं. इनपुट आउटपुट येते अँगल युनिट। अँगल हा अँगल युनिट. हा भेटलं। उस पे क्या लिखा है? 991 FX लिखा है ना? EX लिखा है। होगा। EX है 991 EX। था मेरे पीसी में, मैंने अभी डिलीट किया।
Can you feel the needed 2-3 minutes for this. किसी के पास है क्या ऑनलाइन अवेलेबल? तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है अभी अवेलेबल तो यू कैन डू दैट ऑल कैलकुलेशन ऑनलाइन ऑल्सो, ठीक है। बट आप कैलकुलेटर मतलब आपको लेना ही होगा, अदरवाइज आगे आपको डिफिकल्टी आएगी। द मल्टीपल इंटीग्रल, ओके, दिस M2 इज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ M2 इज डिपेंड ऑन द कैलकुलेटर। MCQs के लिए तो ये ट्रिवियल है, मतलब देयर आर मेनी ट्रिक्स ऑन दिस कैलकुलेटर जिससे MCQs तो ट्रिवियल हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर MCQs में M2 में स्कोर आ जाता है। So I hope it will work now. We close this. Okay, so till that time we'll continue. तब तक मैंने डाला यार ऑलरेडी, या ओके, इट विल टेक सम टाइम। हाँ, ठीक है, मैं फिर से वही ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, अदर स्टूडेंट्स कैन हेल्प यू इन ए सिमिलर वे, वी हैव टू अप्रोच टू दैट। या अभी आप देखो, तो ठीक है, रेडियन मोड सबको समझ में आ गया है, ऑल स्टूडेंट्स? ओके, एंड नाउ, हाँ, तो अभी रेडियन में आ गया, ओके। हाँ, नाउ आई थिंक वहाँ पे एक इंटीग्रेशन का ऐसा एक बटन होगा, अभी कहीं पे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक इंटीग्रेशन का ऐसा बटन होगा, जैसे यहाँ पे सेकंड रो में इंटीग्रेशन का बटन है क्या वहाँ पे? Yes sir. ओके, सो जस्ट प्रेस दैट बटन। स्क्रीन पे आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा, आ रहा है? यस सर। ओके, हाँ, अब इसमें आपको फंक्शन डालना है। फंक्शन डालने के लिए आपको पहले ब्रैकेट लेना है, सो दैट ओपन ब्रैकेट। ओके, अभी पाई बटन यहाँ पे ना येलो कलर में है एंड लास्ट रो में मेरे कैलकुलेटर में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे शिफ्ट प्रेस करना होगा, शिफ्ट दिस मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, सो दैट गिव्स मी पाई। उसका स्क्वायर है, सो आई विल प्रेस x स्क्वायर, सो पाई स्क्वायर माइनस, अभी x कैसे लेना है? रेड कलर में यहाँ पे मेरे पास कितने रो में है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो में आप देखो रेड कलर में x दिया है, सो x इज माय वेरिएबल, बट सिंस इट इज इन रेड कलर तो मुझे पहले अल्फा प्रेस करना होगा, देन आई कैन टेक दिस x, सो पाई स्क्वायर माइनस एंड देन अगेन प्रेस x स्क्वायर एंड देन कंप्लीट योर ब्रैकेट। ओके, प्लीज डू इट ऑन योर कैलकुलेटर एंड आफ्टर दैट टेल मी। Yes, do it on your calculator, just reply me. Yes sir. यस सर। 13.15। हाँ, ठीक है, और फिर आप क्या करो, हाँ, अभी ये एरो का बटन है ना, यहाँ से आप जा सकते हो पीछे, ठीक है। देन कम टू एट बॉटम लोअर लिमिट, दैट लिमिट इज 0, सो 0 प्रेस इक्वल, सॉरी, हाँ यहाँ, देन 0 प्रेस इक्वल आपके लिए आपको होगा शायद, या ना डायरेक्टली एंट्री हो रही है, सॉरी डायरेक्टली एंट्री हो रही है, देन शिफ्ट एंड पाई, ठीक है। सो 0 to पाई, पाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है वैसे मैंने टाइप किया। इज इट ओके ना? एंड जस्ट प्रेस इक्वल, ओके। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, दैट आंसर इज इन नाउ मतलब डेसिमल पॉइंट। एग्जाम में जो आंसर होगा वो फ्रैक्शन में रहेगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा आपको वो मैनेज करना होगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2/5। So if I multiplied by 2/π, that gives me 13 point something, ठीक है। सी
but as far as theory exam is concerned, it is not acceptable. So 13.1594, 13.1594 ऑनलाइन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो. 4 ऑप्शन में देखो कि कौन से फ्रैक्शन की वैल्यू ये आ जाती है. दैट कंप्लीट्स योर प्रॉब्लम. बट फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू सॉल्व दिस. तो उसके लिए मैं क्विकली आपको सॉल्व करके भी देने वाला हूँ. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ पाई स्क्वायर? दैट इज पाई स्क्वायर एक्स. एक्स स्क्वायर का क्या आता है? एक्स क्यूब बाई 3 एंड यूर लिमिट्स फ्रॉम 0 to pi, then 2 by pi, correct? If I put the upper limit, that gives me pi cube minus pi cube by 3, and at lower limit you will get 0, so you will get this only. That is equal to, ये इतना भी difficult नहीं है manually भी. So 3 minus 2, so 2 pi cube by 3. So actually your answer is what? क्या है? 4 pi square by 3. 4 pi square by 3. ये ऑप्शन में होगा. ओके, दिस मतलब 4 ऑप्शन में ये आने वाला है. आपको कैल्स में फिर से चेक करना होगा कि 4 पाई स्क्वायर बाई 3 की वैल्यू क्या है. इज इट 13.1594 और नॉट. ठीक है, तो ये जिनको इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है ना, दोज कैन ट्राई दिस मेथड आल्सो. ओके, रेडियन में कुछ केसेस में यू विल गेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इन अ फ्रैक्शन मोड डायरेक्टली. ओके, बट हार्डली 2-3 मतलब ऐसे ज़्यादा एग्जाम्पल में नहीं है. रेयरली ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको आंसर ऐसे डिसिमल पॉइंट में आता है. तो ज़्यादातर केसेस में कैलसी से आपको आंसर ऑलरेडी फ्रैक्शन में मिल जाता है. बट ये पाई स्क्वायर बाय 3 दिस इज नॉट दिस फ्रैक्शन इज नॉट यू कैन कैलकुलेट इन कैलकुलेटर. कैल्सी में ऐसे फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी आपको वैल्यू. बट अगर पाई आ जाता है ना सिंगल 4 पाई बाई 3 अगर इसका आंसर होता ना, तो डायरेक्टली कैल्सी में भी आपको 4 पाई बाई 3 मिल जाएगा रेडियन मोड में. ठीक है, सो देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो. And now we can calculate an, the last calculation. An is equal to, अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, 2 by L, but L is pi, integration 0 to pi, your f of x is pi square minus x square, and you have to multiply by cos n pi x by L. क्या लिखना है मुझे यहाँ पे? n pi x by L, but L is equal to pi, तो pi pi cancel हो जाएगा. So what is in the bracket? nx. Is it correct? क्या एक्सप्लेन करना है फिर से? Is this okay? Yes, sir. अदर स्टूडेंट्स जिसको नहीं समझ में आप डायरेक्टली नो बोलो. ओके, ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है इसलिए आपको भी वैसे ही कंटिन्यू करना है. यू कैन डायरेक्टली टेल मी नो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट फार्मूला अगेन. ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पे ये था 2 by L 0 to L f of x cos n pi x by L, but L is pi. ठीक है, but L is pi and L is L is pi and f of x is pi square minus x square. Now you can complete this. So let's do it. तो उसके आगे फिर एग्जांपल में चेंज करने वाला. So 2 by pi. So first function as it is, as this is my first function because its derivative becomes 0. Second का integration, plus sin nx upon n. Now give the minus sign. What is the derivative? Minus 2x. Then its integration is minus cos nx upon n square. Give the plus sign, that derivative is minus 2, and now this become minus sin nx upon n cube. Okay, and just complete this 0 to pi. Okay, let's do it. So this is equal to 2 by pi. Okay, हाँ बोलो. If I put upper limit, tell me quickly. Because of this sign, this is 0. What about this next? 1 2 3 कितने माइनस साइन आ रहे हैं? 3 माइनस आ रहे हैं. तो एट देन क्या मिलेगा? माइनस ही मिलेगा. पुट x इक्वल टू पाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाय कॉस क्या आने वाला है? अभी मैं लिख रहा हूँ 2n पाई अपॉन n स्क्वायर. व्हाट अबाउट दिस थर्ड? पॉजिटिव रहेगा. 0. Because of the sign it becomes 0. Minus minus plus and that becomes 0. That is all about your upper limit. Now calculate the lower limit. Minus. Put x equal to 0, but because of this sign this term is 0. Because of this x this term is 0. And because of this sign this term is 0. Sir, the 2n pi. n pi रहेगा. 2n pi. Sorry. So it is just n pi. Yeah. Okay, good. And now your final answer is 2 by pi. Okay, अब ये क्या मिलेगा आपको? यस, ये भी आप कैंसिल कर सकते हो ना डायरेक्टली. या सो दिस पाई कैंसिल विद दिस पाई, यू विल गेट minus 4 अपॉन n स्क्वायर. व्हाट अबाउट cos n pi? cos n pi की वैल्यू क्या है? -1 -1 n. हो गया.
ठीक है, एंड एट द एंड जस्ट राइट डाउन द फोरियर सीरीज. सो द फाइनल वैल्यू इज f of x is equal to, let me save this again, f of x is equal to a naught plus summation a naught by 2 na, summation n runs from 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l हो गया. लेट मी डू इट क्विकली. व्हाट इज आवर a naught, क्या था ऊपर, कुछ तो 4 pi square by something ना, 4 pi square by 3, so by 2, so that become what, 4 pi square so let me share my screen again. कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, what is my last point? -1 an below. हाँ, so this is our an. Okay, this is our an. We are at this part. Now next is what? So a naught आपने कैलकुलेट किया है, an आपने कैलकुलेट किया, bn इज डायरेक्टली 0 ही है. Now just write down the general formula of Fourier series. तो यहाँ पे मैंने वो लिखा है. And now just put all these values. So what is my a naught? A naught हमने ऊपर कैलकुलेट किया था. What is our a naught? 4 pi square by 3. So divided by 2. So that gives me 4 pi square by 6 plus summation n runs from 1 to infinity. Just write down the an. An is this. So minus 4 upon n square minus the raised to n multiply by what, cos in bracket what, since L is pi, so nx. And what about next, yes, what about this next, 0 तो वो लिखने की जरूरत नहीं. दिस इज योर फाइनल आंसर. f of x की वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अभी इस एक ऐसा भी क्वेश्चन है आपको, मैं बाद में लेने वाला हूँ, जहाँ पे फोरियर सीरीज मतलब ये रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन होगा, and from that you have to calculate the value of infinite series. Okay, this thing is given. Okay, वो डायरेक्टली एज MCQ में लेने वाला हूँ. This thing is given and from this we have to actually calculate the value of series. Okay, for example, ठीक है, वो मैं ले लेता हूँ, चलो अभी टाइम है. तो इसमें अगर मैं क्वेश्चन में एक और पार्ट ऐड कर देता हूँ ना, लेट मी आई हैव टू चेक कि क्या गिवन है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. इसमें देखता हूँ मैं क्या आने वाला है. ओके, इसमें क्या होगा, 2 स्क्वायर, आई थिंक यू कैन कैलकुलेट दैट. ओके, जस्ट अभी मुझे पता नहीं कौन सी सीरीज जनरेट होगी, बट ये दिखाई दे रही है. ओके, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड होता है. फाइंड यूजिंग फोरियर सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 अल्टरनेटिवली ले लेता हूँ मैं, 1 माइनस दिस प्लस दिस 3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड सो. ओके, इस फॉर्म में. सो अभी यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ, ओके, इसके एग्जांपल में लेने वाला हूँ. आपको यहाँ से इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. व्हाट इज अवर क्लेम हियर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड सो. ठीक है, तो ये सीरीज आपको चाहिए. अभी मुझे आप पहले ये बोलो, इन दिस इक्वेशन 1 ये इनफाइनाइट सीरीज आपको कहाँ पे मिलने वाली है. ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, देयर आर 3 टर्म्स. दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म, दिस इज माय थर्ड टर्म. आप मुझे पहले ये बोलो, ये इनफाइनाइट जो सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज आपको कौन से टर्म में मिलने वाली, इफ इट इज एग्जिस्ट, दैट मस्ट बी इन विच टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म में सीरीज नहीं है, देयर इज ओनली 1 टर्म. इसमें आप देखो एक ही टर्म है, तो ये कभी नहीं मिलेगी वहाँ पे. सेकंड टर्म में भी एक ही टर्म है, तो ये कभी नहीं मिलेगी वहाँ पे. ये समेशन में जा रहा है, मतलब अगर वो सीरीज वहाँ पे एग्जिस्ट होती है ना, तो दैट मस्ट एग्जिस्ट हियर ओनली. समेशन के अंदर ही वो एग्जिस्ट होगी. ओके, ये था हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है,
इन दिस सीरीज, ओके, इज देयर इन दिस सीरीज वहां पे कॉस का टर्म है क्या? इस सीरीज, अगर इस सीरीज में आपको एक्सप्रेशन को थर्ड टर्म को मुझे अगर इसमें कन्वर्ट करना है, सो विद आई वांट दिस कॉस, कॉस है ही नहीं वहां पे, आई डोंट वांट कॉस। अगर आपको कॉस नहीं चाहिए, अगर आपको दिस ओके, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर व्हाट, फॉर विच वेरिएबल? दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल x ना, एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, के sir. लिए आपने सॉल्व किया ना, f ऑफ x के लिए आपने सॉल्व किया है, मतलब ये फॉर ऑल x के लिए आपने ये लिखा है, ओके। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट था कि कौन से एक्सप्रेशन में अगर ये सीरीज कैलकुलेट करें तो वो थर्ड टर्म में ही होगी, करेक्ट। अगर आप थर्ड टर्म को देखते हो तो थर्ड टर्म में कॉस आ रहा है, बट इस सीरीज में कहीं पे कॉस नहीं है। इट मींस आई डोंट वांट कॉस, मतलब मुझे इस वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करना होगा। कैसे होगा वो? हाउ यू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू 1? हाउ यू डू दैट? Put x equal to 5. Put x equal to 5. cos n pi is minus 1 raised to n. That I can create a problem. But उससे भी हो जाएगा, okay. But the simplest way is what? The simplest way is what? X is equal to 2. करो ना, that reduces our calculation also ना। सो पाई के लिए भी चेक करते कि क्या मिल जाता है, अगर सारी चीज़ें देखते ओके। लेट मी जस्ट पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि वो इससे ये भी सिंपल हो जाएगा और cos 0 भी 1 आ जाता है, ओके। मुझे भी पता नहीं इसमें सीरीज क्या जनरेट होगी, सो लेट मी चेक क्लियरली फर्स्ट। पुट x इक्वल टू 0 ऑन LHS विल गेट पाई स्क्वायर, क्योंकि कैसे भी करके ये सीरीज मुझे वहाँ पे एडजस्ट करनी है, एंड दैट गिव्स मी 4 पाई स्क्वायर बाय 6 प्लस समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये माइनस में बाहर ले लेता हूँ अभी, ओके, उसका, एंड ये 4 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 रेज टू n, एंड ये cos 0 भी 1 आ जाएगा, ओके। अभी क्या करता हूँ मैं, ये इस टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। सो पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर, ये क्या है एक्चुअली 2/3 ना, ठीक है सर बट ते मग n पण होईल ना? हाँ कर लेते ना, उसमें कोई इशू नहीं है, ओके। हाँ, ये समझ में आ रहा है ना सबको? मैं लिख लेता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कंफ्यूजन होगा, बाद में कर लेते हैं, चलो। सो जस्ट लेट मी शिफ्ट दिस, पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू, हाँ नाउ माइनस टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। पुट n इक्वल टू 1, क्या मिलेगा? यू कैन टेक दैट 4 आउटसाइड ऑल्सो, यू कैन टेक दैट 4 ऑल्सो आउटसाइड, या ओके, या मैं लिख लेता हूँ, -4 मैंने बाहर लिया है, इन ब्रैकेट यू विल गेट n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। क्या मिलेगा यहाँ पे अभी आपको? -1 रेज टू n अपॉन व्हाट? n स्क्वायर। इज दिस करेक्ट? जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है? Yes, sir. नाउ जस्ट डू इट, दिस इज 2/3 एंड ये 3 माइनस क्या मिलेगा ये बोलो फाइनली? है ये क्या एक्चुअली 2/3 है, सो क्या 3 पाई Pi square by 6. समझ में आ रहा है। सो पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू दिस -4 एज इट इज। नाउ पुट n इक्वल टू 1, क्या वैल्यू मिलेगी? Pi square by 6. सॉरी पाई स्क्वायर बाय 3, हाँ ये पाई स्क्वायर बाय, सॉरी मैंने क्या लिखा है, ये रिवर्स ही लिखा है ना, दिस इज एक्चुअली पाई स्क्वायर बाय 3, ओके करेक्ट है, ये करेक्ट है। नाउ पुट n इक्वल टू 1, क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म बोलो, 1 by 1 square. साइन क्या आएगा ऊपर? -1 रेज टू 1, माइनस -1 अपॉन 1 स्क्वायर, करेक्ट है। पुट n Yes, इक्वल टू sir. 2, पुट n इक्वल टू 2 1 स्क्वायर, upon 1 by 2 square. पुट n इक्वल टू 3 -1. and so on, ठीक है। So and now if I multiply this by this minus sign and if I take this 4 on LHS you will get pi square by 12, okay, माइनस से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, so here I will get 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square and so on. अगेन दिस सिलेक्शन इज, आप ऐसा भी हो सकता है कि किसी एग्जांपल में और मतलब x इक्वल टू पाई और किसी वैल्यू के लिए भी आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट एट द एंड यू विल गेट दिस सेम वैल्यू। आप किसी भी वैल्यू के लिए ट्राई करो, ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स है उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं, बट एट द एंड यू विल गेट दिस सेम वैल्यू। इस सीरीज का आंसर क्या है? पाई स्क्वायर बाय 12। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोरियर सीरीज। अब देखो आपने फोरियर सीरीज का यूज करके एक इनफाइनाइट सीरीज की डायरेक्टली, दिस इनफाइनाइट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट सीरीज, ओके, एट द एंड इसका आंसर पाई स्क्वायर बाय 12 ही आने वाला है, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फोरियर सीरीज, एंड ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो मतलब डायरेक्टली ये आपको मैं दे दूंगा, ओके, दिस वैल्यू इज गिवन, क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज,
ठीक है। अभी आप मुझे ये बोलो, इसमें भी देखो कितना ट्रिवियल लॉजिक है। अभी आप मुझे ये बोलो, ओके अब इसका आंसर आपका क्या आ गया, मैं पहले ये लिख लेता हूँ। योर आंसर इज π²/12, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ऊपर में फंक्शन को चेंज कर देता हूँ, ओके किसी मतलब, और इसके जगह पे अगर कोई और इक्वेशन वहाँ पे आ जाता है, ओके जिस इक्वेशन में भी ये इनफाइनाइट सीरीज कैलकुलेट करना पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आपको π² - x² से ही ये सीरीज मिलेगी, ओके देयर आर सम अदर फंक्शंस आल्सो फ्रॉम विच यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। तो अगर एग्जाम में इक्वेशन 1 की जगह पे कोई और इक्वेशन वहाँ पे आ जाता है, और उस क्वेश्चन में भी अगर मैं आपको ये पूछता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1² - 1 1/2² + 1/3² - 1/4², तो आपका आंसर क्या आएगा उस केस में भी? सिंपली इफ आई चेंज दिस इक्वेशन 1, एंड अगर सेम क्वेश्चन रहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1² - 1/2² एंड सो ऑन, व्हाट इज योर फाइनल आंसर? सेम आएगा, वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, मतलब इट Yes. इज इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट इज योर गिवन फंक्शन। इफ इट इज दिस, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज, कोई भी इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन ऊपर आने दो, एट द एंड आपको आंसर क्या मिलने वाला है? π²/12 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे 5-6 सीरीज भी कलेक्ट करके रख देते हो ना, मतलब हार्डली इन आवर सिलेबस देयर आर ओनली 4 सीरीज जिनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, अगर आप वो भी रख देते हो आपके सामने, तो भी आपको पता कि फाइनली आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। सो इसलिए दिस ऑल्सो बिकम अ ट्रिवियल पार्ट। तो आपको इस पर यह भी एक MCQ आ सकता है कि यूजिंग विच सब्स्टिट्यूशन, जैसे यहाँ पे x = 0 से मुझे ये मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी एक आ सकता है कि यूजिंग विच सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट दिस सीरीज, ठीक है। सो इन बोथ वे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसके और भी एग्जाम्पल्स मुझे लेने, बट नीड सम टाइम फॉर दैट, ओके या। सो कैन वी कंटिन्यू मोर फॉर 5 मिनट्स और यू वांट मी टू स्टॉप हियर, बिकॉज मुझे अभी इंटरवल के केस में इवन एंड ऑड केसेस चेक करना है। अगर मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ ना, एटलीस्ट यू कैन प्रैक्टिस सम मोर एग्जांपल्स। कैन आई कंटिन्यू और यू वांट मी टू स्टॉप हियर? आप बोलो डायरेक्टली, नो इशू करा सर, काय नाही सर। या। सो अदर स्टूडेंट्स कैन पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स, ओके टिल दैट टाइम, बट ज़रूरत नहीं अभी, आई कैन टेक योर अटेंडेंस डायरेक्टली फ्रॉम एक्सटेंशन, ठीक है। सो नो नीड टू पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स, राइट। इससे आगे हम स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हैंग हो जाता है आपको पुट करने के लिए। ओके सो आई विल जस्ट टेक वन एग्जांपल ऑन दिस लास्ट पार्ट एंड देन विल स्टॉप, ठीक है। या सो एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला नाउ, इसके आगे एक्चुअली टॉपिक आज स्टार्ट हुआ ही नहीं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। एंड प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑन कैलकुलेटर। इंटीग्रेशन कैलकुलस में कैसे कैलकुलेट करके आप लर्न करो, दैट सेव्स योर टाइम, ओके। सो लेट मी टेक अ फर्स्ट फंक्शन f of x is equal to pi minus x. Yeah, let me take not this, I don't want this, I want cos x minus cos x minus pi to 0 and 0 to pi. अभी नेक्स्ट इसमें ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके। सो पहले मुझे ये बोलो, दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन विच इंटरवल? दिस f of x is defined on which interval? -π to π. टोटल इंटरवल क्या है? -π to π, ठीक है। तो अगर आपको इस फंक्शन की फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है, तो आपको क्या करना होगा? We have to check whether this given function is even function or odd function. तो बोलो क्या है, ये कौन सा फंक्शन है? इवन है कि ऑड है कि neither even nor odd है? neither even nor odd. नो सर मग ते 0 वर तर म्हणजे असं वेगवेगळ्या ठेवले ना, शार्प पॉइंट दिला तसं. नहीं, नो सो ये सिग्नम फंक्शन है क्या? नो सिग्नम में क्या वैल्यूज है? कुछ तो 1 and 0 है ना, या 1 and -1, 1 and 0 आई थिंक, 1 and 0, similar to that, okay. फंक्शन स्पेशल नहीं है, this function is not at all a special function, okay. सर कंटिन्यूअस काय म्हणजे आप कैसे चेक करते हो मैथमेटिकली वेदर इट इज इवन और ऑड? आप कैसे चेक करते हो? आप क्या करते हो? माइनस आप पहले क्या करते हो? f of -x कैलकुलेट करते हो, है ना। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाते हैं तो आप उसको इवन बोलते हो। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू माइनस साइन, देन वी कॉल इट एज ऑड फंक्शन, अदरवाइज वी कॉल इट एज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो आपको इस केस में पहले ये समझ में आना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट f of -x। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके कुछ स्टेप्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी देने वाला हूँ, बट एक क्विक इंट्रोडक्शन लेके देन विल स्टॉप।
ओके तो अभी आपको हाँ सो कैन एनीवन हेल्प मी हाउ आई कैलकुलेट एफ ऑफ माइनस एक्स? एक्स को माइनस रिप्लेस एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दो, इतना सिंपल है। एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे कैलकुलेट होगा? एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखो। बट कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स। अभी मैं लिख लेता हूँ ना, कॉस ऑफ माइनस एक्स अगेन कॉस एक्स, अभी मैं लिख लेता हूँ। ये सारे जहाँ पे भी मुझे एक्स दिखाई दे रहा है ना, सो इंस्टेड ऑफ दैट एक्स आई विल पुट माइनस एक्स। जहाँ पे मुझे एक्स दिखाई दे रहा है ना, हाँ अभी इसको मुझे थोड़ा सिंपल सॉल्व करना होगा। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, नाउ टेल मी द सिंप्लीफिकेशन। ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? नीचे क्या आने वाला है? माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। अभी आप देखो मुझे क्या करना है, इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करना है। एट देन मुझे इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद ही मुझे समझ में आ गया कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दे आर इक्वल विद रिस्पेक्ट टू माइनस साइन। ओके बट राइट नाउ आई कैनॉट कंपेयर दिस टू फंक्शन बिकॉज ऑफ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स पे डिफाइन किया है मैंने, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स किस पे डिफाइन किया है? माइनस एक्स पे डिफाइन किया। नाउ दिस टू आर नॉट इक्वल। अगर मुझे दो फंक्शन को कंपेयर करना है तो मुझे एक सिंगल एक्स के लिए कंपेयर करना होगा, या तो मुझे माइनस एक्स के लिए कंपेयर करना होगा। आई कैनॉट कंपेयर टू फंक्शन ओके वेयर द फर्स्ट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एक्स एंड सेकंड फंक्शन इज डिफाइंड फॉर माइनस एक्स। I cannot compare two function where the first function is defined for x and the second function defined for minus x. तो मुझे किसी एक फंक्शन को x में कन्वर्ट करना होगा। ओके तो ऑब्वियसली सर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 ठीक है। आप व्हाट इज आवर डिरिचलेट कंडीशंस? मैंने आपको क्या बोला था उस टाइम पे? यस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, इट इज नॉट डिफाइंड एट 0 ओके बट दैट इज अलाउड, क्योंकि आप फाइनाइटली मिनी डिसकंटिन्यूअस का जो फंक्शन है ना उसके लिए भी आप फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज नॉट द इशू। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था शायद ये लेस इक्वल लेस दैन दैट विल नॉट अफेक्ट आवर क्वेश्चन। ठीक है, अगर वहाँ पे 4 डिसकंटिन्यूटीज भी है ना तो भी आप उसकी फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनाइट नंबर में अगर डिसकंटिन्यूटीज आ जाती है ना आप उस केस में एक फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? So that continuity and discontinuity will not affect. Okay, if that function is discontinuous at infinite many points, infinite points के लिए अगर वो discontinuous हो रहा है ना उस केस में आप फोरियर सीरीज नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए लेस इक्वल एंड लेस देन दैट विल नॉट अफेक्ट। लेस देन लेस इक्वल से हार्डली 1 या 2 पॉइंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, बट उससे फोरियर सीरीज में कुछ इशू नहीं आ जाता। हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन क्या था? ओके, अदर्स कैन लीव, आई हैव टाइम सो आई विल जस्ट कंटिन्यू। अदर्स कैन लीव, ये सेम पार्ट में कल के लेक्चर में भी लेने वाला हूँ, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन लिसन। तो राइट नाउ आई कैनॉट कंपेयर दिस टू फंक्शन बिकॉज वन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एक्स, अदर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर माइनस एक्स। तो मुझे किसी एक फंक्शन को फिर से एक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो ऑब्वियसली मैं क्या करने वाला हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स का जो फंक्शन है ना आई हैव टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब ये रेंज मुझे एक्स में कन्वर्ट करनी है। तो हाउ आई कन्वर्ट दिस रेंज इनटू एक्स विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवल? माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे है ना, इंटरवल को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है? या अगर मेरे प्लेन इंटरवल इफ आई मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन तो क्या हो जाता है? आपको क्या करना पड़ता है? सेम इंटरवल आपको रिवर्स से लिखनी पड़ती है। एम आई करेक्ट? ये आपको पता है? ये रिजल्ट पता है ना, क्योंकि माइनस से एक्चुअली क्या हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, सो टू राइट दिस ओके व्हाट आई विल डू, माइनस बी लेस देन माइनस एक्स लेस देन माइनस एक्स। ठीक है, हाँ तो अभी वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। माइनस से मल्टीप्लाई करो, पहले ये मतलब हमेशा याद रखो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना रिवर्स से स्टार्ट करो तो इजी होता है लिखने में, यानी मतलब इनइक्वालिटी वैसे ही रहने दो। सो दिस आई कैन राइट इट एज 0 माइनस 0 इंटू 0 इज सेम। देन बोलो टेल मी नेक्स्ट टर्म, माइनस 1 इंटू एक्स, दिस टर्म इज पाई। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट और नॉट? टेल मी दिस नेक्स्ट इंटरवल आप बोलो, इसमें क्या लिखना है मुझे नीचे? माइनस 5x हो गया, इतना ही है इसमें। नाउ दिस इज माय एफ ऑफ माइनस एक्स, आई विल टेक दिस अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज माय एफ ऑफ एक्स, ये फिर से लेने वाला हूँ। हाँ, अभी आप कंपेयर करके बोलो कि ये कौन सा फंक्शन है, और कंपेयर कैसे करना आप खुद एनालाइज करो। Now compare it and tell me which whether it is even or whether it is odd function. तो कंपेयर करने के लिए you can't compare माइनस, मतलब कंपेयर करने के लिए आपको इंटरवल वाइज जाना होगा, है ना। You have to compare मतलब let's consider the first function f of x, okay, where on the interval minus pi to 0, on the interval minus pi to 0 मेरे पास वैल्यू क्या है? My value is cos x। तो सेम आपको यहाँ पे देखना होगा f of माइनस एक्स में माइनस पाई टू 0 पे मेरे पास वैल्यू क्या है?
सो यू हैव टू कंपेयर दैट फंक्शन इंटरवल वाइज, नॉट रैंडमली. अगर आप रैंडमली कंपेयर करते हो तो वो समझ में नहीं आएगा वेदर दैट फंक्शन इज इक्वल और इक्वल विद रिस्पेक्ट टू माइनस साइन. तो अगर यहाँ से मैं ये इंटरवल फिक्स करता हूँ तो वही इंटरवल आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी. अब ये दोनों फंक्शन देखो, एक केस में cos x वैल्यू तो एक केस में क्या है माइनस cos x वैल्यू. मतलब क्या है, दिस टू आर इक्वल बट इक्वल विद रिस्पेक्ट टू माइनस साइन. दिस टू आर इक्वल बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ माइनस साइन. ठीक है, सेम गो फॉर द नेक्स्ट इंटरवल, क्योंकि सारे इंटरवल के लिए ये होना, इंटरवल के लिए यू विल गेट द सेम रिजल्ट. नाउ नेक्स्ट इंटरवल इज 0 to pi and on this interval my function is minus cos x, okay, in first case, and here in second case my function is cos x. So for the second interval also, okay, you will get the function which is equal with respect to minus sign. Equal तो आ रहे but minus का difference है. So at the end for all interval f of minus x is equal to minus times f of x. These both functions are equal but there is a difference of minus sign. Okay, so what that implies, our function is odd function. Okay, so this part we need in our next lecture. So I will take this part in detail. Okay, so here we'll stop today. Sir,